आप सुनिएगा जरा गौर से। Thank you, sir. So it was at 12:30. So sorry, it was from 1:15 to 2:30 when my colleague mentioned the duties. Now it was at 2:35 p.m. When Maria returns to her office after the meeting, she opens an email from her co-worker, James. In the email, James asked Maria if she would be the contact person for one of his clients while he is out of town on vacation. She responds that she is able to do it and thinks, I don't really have time for this, but I guess James needs my help. This was 2:45 to 4:30 p.m. Maria spends the afternoon trying to finish up the last minute work assignment, spends 30 minutes before for a stack of completed client's form. She is unable to finish the assignment before leaving work for the day and will have to complete it first thing in the morning. 4:45 to 6:15 p.m. Maria leaves work to go to her daughter's soccer game, which she promised she would attend. After the game, she drops her daughter off and home and retrieves the material she needs to conduct her Lions Club meeting. 7 to 8:30 p.m. During the club meeting, a discussion takes place about the need for a new service project that will help support the local library, which has been struggling financially for several months. The members want to organize a book drive and fundraiser involving local business. Unfortunately, no one volunteered to serve as the committee chair for the project, so Maria volunteered herself. When now is 9 to 10:30 p.m. When Maria arrives home after the meeting, she spends the next hour and a half trying to catch up her personal email. She also knows she needs to get started on a presentation that she is giving to the district convention in 2 weeks, but decided to put that off until another time. Finally, Maria goes to bed around 10:30 p.m. Thank you very much. Thank you. Where you got the all points which we have on the page 1 regarding Maria case. Is it okay? सारे पॉइंट्स आपके जहन में आ गए कि मारिया को क्या क्या इशू थे. चूंकि ये पर्टिकुलरली वुमेन रिलेटेड इशू है, आप बेटा खड़े हो जाए जरा, मुझे बताइएगा कि क्या मारिया सही तरीके से अपना टाइम मैनेज कर पाई है. आपने सुना ही नहीं, आपने हेड फ्री को नहीं लगाई. अच्छा, फिर आप जल्दी से स्पीक अप क्विक. वाह ग्रेट. उन्होंने कहा कि भाई इसीलिए मुझे शक था कि इन्होंने सुना ही नहीं, मैसेजिंग कर रही थी. आप बताइएगा. नो. She got up late in the morning, so that's why. अच्छा, क्या आपको लगता है, बाकी सब टास्क. वेरी नाइस, क्या आपको लगता है कि आप भी कभी ऐसी सूरत हाल से गुजरी हैं जैसे मारिया गुजर रही है? होता है ऐसा. कोई एक पॉइंट बताइएगा मुझे. Sometimes if ये ऑब्स्टेकल्स आपके सामने क्या इशू था इनमें? कोई एक मुझे पॉइंट आउट करके बताइएगा कि मुझे ये रुकावट थी टाइम मैनेजमेंट. देखिए, लैक ऑफ प्लानिंग है, डिसऑर्गेनाइजेशन. आपको लगता है पर्सनल डिसऑर्गेनाइजेशन. चलिए, ये आपका बिल्कुल पर्सनल मैटर है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे. आप सर खड़े हो जी. कौन सी आपको ऑब्स्टेकल्स लगती है कि जो आपको प्रॉब्लम करती है आपके टाइम मैनेजमेंट? लैक ऑफ प्लानिंग. सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें ताकि लोगों के जहन में ये थोड़ा सा एलैबोरेट हो सके कि लैक ऑफ प्लानिंग होती क्या है. लैक ऑफ प्लानिंग ये कि मैं एटलीस्ट ऑफ टाइम में डिसाइड करूं. उससे पहले मेरी प्रिपरेशन हुई नहीं होती है. ट्रैवल टाइम को कैलकुलेट नहीं करता हूँ. किसी मीटिंग के लिए अक्सर लेट हो जाता. तो दैट वाज नॉट माय प्लानिंग.
इस वजह से मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो Very nice. We have a bit more obstacles. आप बेटा शेयर करना स्टार्ट करें। देखिए उधर, look at the slides. What sort of obstacles you are facing regarding your time management? Inability to say no. Like Inability to say no. Why? Don't let your tongue to burden your shoulder. This is the beautiful saying. Don't let your tongue to burden your shoulders. ऐसा इशू है, जुबान की बेटी है, ना नहीं कर सकती, तो जो कोई काम कहता हूँ करती जाती है और फिर आखिर में कोलैप्स हो जाती है। ओके, वेरी नाइस। एक्सक्यूज मी सर, सर क्या वैसे क्वेश्चन कर सकते हैं सर? जस्ट वैसे अगर बारिश के बारे में पूछना या मैच के बारे में यू आर वेलकम। बात का होता है ऐसे, जिस तरह उससे भी हुआ कि उसने नो नहीं कहा। जी जी प्लान किया था कि शायद वो जा सकती है, शायद वो मैनेज कर लेगी। जी जी अगर वो मिस मैनेजमेंट उसकी आ गई हो तो मैंने मिसकंस्ट्रक्ट कर लिया, मगर वो वहाँ पे उसे समटाइम्स होता है वो क्वेश्चन नहीं निकाल पाए बिल्कुल सही, उस चीज़ के लिए। बिल्कुल सही। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि कल हम चलेंगे, जी जी मगर सुबह मेरी इधर भी कमिटमेंट है, मैं आपको ना नहीं कर पाया, मगर दोनों जगह रह गया और स्ट्रेस मैंने वो एक्स्ट्रा बर्डन अपने बिल्कुल। मैं इसी पॉइंट की तरफ आने वाला था वरना नासिर। ये मुझे बताइएगा कि if you are not able to manage your time, what sort of side effects you can have on your personality or either in your life, regarding your personal life, your professional life or your loyalism? आप मुझे बताना स्टार्ट करेंगे कि अगर टाइम को आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते तो किस किस्म के दो बुनियादी साइड इफेक्ट यू कैन हैव योर और स्ट्रेस होगा, फटीग हो जाएगी, you become a irresponsible person. Very nice. आप सब शेयर करेंगे पावर ऑफ डिसीजन, पावर ऑफ नहीं, मैंने पूछा है कि अगर आप सही तरीके से टाइम अपना मैनेज नहीं कर पाते, आपके तीन फेजेस चल रहे हैं, आप लॉयलिज्म से भी जुड़े हैं, आपका एक प्रोफेशनल एरा भी है, आपका एक सोशल भी है, तो किस किस्म के साइड इफेक्ट होंगे?